Hello everyone, I am Assistant Professor Jayendra Patel from Mechanical Engineering Department, Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. In this lecture of Indian Constitution, we are going to see the constitutional powers as well as the status of President of India. The President is basically the head of the Indian state. So he is the topmost person of the Indian state. That's why he is also known as the first citizen of India. Additionally, he is the commander-in-chief of the Indian Armed Forces, as well as he acts as the symbol of unity, integrity and the solidarity of the state of India, or we can say of the Indian nation. Other than that, he is the part of the Union Executive. Now, Union Executive is the combination of numbers of peoples. Now, he is the topmost person of the Indian Executive, yani ki Union Executive. So, we are having the President at the top position. Then after, we are having the Vice President in our Union Executive. Then after, we are having the Prime Minister. Additionally, we are having the Council of the Ministers. Okay, so we are having the ministers, and lastly we are having the Attorney General of the India. So we are having the Attorney General. Now, who is the Attorney General? Attorney General is basically like a legal advisor of the government of India. Okay, so basically we can say that he acts as a lawyer in the Supreme Court of India, and he gives the legal advices whenever needed to the India. So he is the Attorney General. Now, if you want to learn about the role and the powers of the presidents, then you need to go through the part number 5 and articles number 52 to 78. So basically, when we go through this article, specifically article number 52 to 62, under these articles, the information on how a president is elected, what are the powers of the president, then after the functions, and also how he can be impeached. Okay, so basically the complete impeachment process, अगर किसी भी प्रेसिडेंट को निकालना हो तो कैसे हम निकाल सकते हैं, वो सभी प्रोसेस वहां पे दी गई है. So this is all about the basics of the president. Now, for the information, let us go through the history of the presidents. Now, the Constitution of India basically came into force on 26th of the January 1950. So, at that particular time, the very first president that was elected was Dr. Rajendra Prasad. So, he was elected as the first constitutional head of the state, or we can say the president of India. And since the year Constitution has came into existence, total 14 the full-time presidents has been appointed for our countries. So these are all the presidents that were elected till the date, and as I am currently recording this particular lecture during the September 2020, we are having the Ramnath Kovind as the 14th Indian president. Now Ramnath Kovind basically took his charge as a president on July 2017. Okay, July 2017, specifically speaking on the 25th of the July 2017, and he became the 14th Indian president. So this is just for the information purpose. So let us quickly go through the basic elements of the President of India कि भाई election कैसे होता है, minimum qualifications क्या होती है. Okay, so let us go through all these things very quickly, and we will start with the elections of the president. Now, president is basically elected not directly by the people. President is basically selected indirectly. हम वहाँ पे voting करने नहीं जाते हैं. And if you talk about the election of the president, president is basically selected by the electoral college. Now, electoral college क्या होगी? Basically ये होता है एक संगठन जो बना होता है प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए. सो जो लोग प्रेसिडेंट को वोट कर सकते हैं वो लोगों को बोला जाता है, उन लोगों के संगठन को बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज. क्लियर? सो
उनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो वेरी फर्स्ट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। बी स्पेसिफिक, ओके, इलेक्टेड मेंबर्स की बात है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, लोकसभा में हम लोग इलेक्ट करके हमारे मेंबर्स को भेजते हैं, जिनको हम एमपीज बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स बोलते हैं। वो सभी लोग जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया है, और उसके बाद राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए जो मेंबर जाते हैं, वो सभी लोग जो इलेक्टेड होते हैं, वो सभी लोग यहां पे वोटिंग कर सकते हैं। Secondly, the elected members of legislative assemblies of the states. Now, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, यानी कि हमारी जो विधानसभा होती है अलग अलग स्टेट्स में, वहां पे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सभी मेंबर्स यहां पे वोट कर सकेंगे। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, कई स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होती हैं। सो वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, उनके जो मेंबर्स हैं उनका यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। वी आर हैविंग टोटल 6 स्टेट्स जहां पे हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं एमएलएस। सो एमएलएस जो इलेक्टेड होते हैं वो लोग वोट कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिनको हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद, जिनके मेंबर्स को हम बोलते हैं एमएलसीज, सो वो लोग यहाँ पे वोट नहीं कर पाएंगे। थर्डली, the elected members of the legislative assemblies of the union territories of Delhi and Puducherry. Now, why this is a specific thing? हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई legislative assemblies of the state तो दे ही सकते हैं। यू कैन सी दैट यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है, और यूनियन टेरिटरीज में 2 जगह ऐसी है जहां पे हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज अवेलेबल हैं। बाकी की जगह पे हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली दिल्ली और पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो अवेलेबल है, उनके इलेक्टेड मेंबर्स को भी यहाँ पे वोट देने का अधिकार होता है। सो ओवर हियर यू कैन सी दैट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं उनको ही वोट देने का अधिकार है इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और इन सभी को ही बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। नाउ ओवर हियर आपको लग रहा होगा कि भाई सभी लोग तो आ गए, कौन कौन से लोग रह गए, तो लेट अस चेक आउट कि भाई हु कैन नॉट बेसिकली वोट। ओवर हियर यू कैन सी दैट कि भाई लोकसभा और राज्यसभा की जो बात करें, तो वहां पे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं, क्लियर, सो दे कैन नॉट वोट। ओवर हियर जो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स थे वो पहले होते थे, लेकिन अभी का जो अमेंडमेंट हुआ है, उस अमेंडमेंट के तहत ये 2 मेंबर्स भी अभी नहीं रहे हैं। सो बेसिकली ये 2 मेंबर्स की बात नहीं आएगी। उसके अलावा देयर आर टोटल 12 नॉमिनेटेड एमपीज। जो 12 नॉमिनेटेड एमपीज होते हैं, वो सभी लोग यहाँ पे वोट नहीं कर सकते हैं। ये जो लोग होते हैं वो बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, सो दे कैन नॉट वोट। हमने उनको इलेक्ट करके नहीं भेजा है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा सिलेक्ट करके आए हैं। ओके, सो दे कैन नॉट वोट। सो ये हो गई हमारी पार्लियामेंट की बात, 2 + 12 पीपल्स। अदर देन दैट देयर आर सम नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो, यानी कि एमएलएस भी होते हैं कुछ नॉमिनेटेड, वो भी वोट नहीं कर सकते। उनके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होगी, उनके कोई भी मेंबर्स वोट नहीं कर सकते, यानी कि नाइदर इलेक्टेड मेंबर्स नॉर द नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन वोट इन दिस पर्टिकुलर इलेक्शन। कई जगह पे मैंने बोला था कि हमारे पास बाई कैमरल स्टेट लेवल लेजिस्लेचर है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, बिहार में हमारे पास अवेलेबल है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ओके, उसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें, वहां पे भी अवेलेबल है, कर्नाटका में अवेलेबल है, आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है, तेलंगाना में अवेलेबल है, यूपी में भी अवेलेबल है। सो ऑल दीज स्टेट्स, ओके, टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके, सभी 6 स्टेट्स में हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेटिव अवेलेबल है। दैट मीन्स वहां पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलेंगे, विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम बोलेंगे विधान परिषद। सो बेसिकली ये जो एलसीज है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, वो यहाँ पे वोट नहीं कर पाएंगी। सो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर कौन से होते हैं। सभी मेंबर्स जो बेसिकली इलेक्टेड है, वही इलेक्टोरल कॉलेज में
पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ एज वी आर लर्निंग द बेसिक्स, हम लोग डीप में स्टडी नहीं करेंगे। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं उसकी जो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है वहाँ पे और भी डीप स्टडीज़ हैं, जहाँ पे नंबर्स ऑफ इक्वेशन आएंगे, वहाँ पे वोट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं सिखाने वाला हूँ। अगर आपको सीखना है तो मैं इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा 100% सिलेबस खत्म हो जाने के बाद। सो वी विल स्टडी दोज थिंग्स लेटर ऑन। So, as of now, let us go through the qualifications of the president. Now, a person is eligible for the election as a president should fulfill all these qualifications, then he can be the part of the presidential election. The very first requirement is he should be the citizen of India. Secondly, he should have completed at least 35 years of age. Clear? Thirdly, he should be qualified for the election as the members of the Lok Sabha. Okay, so this is the third requirement. And finally, he should not hold any office of profit under the union government or any state government or any kind of local authority or any other public authorities. So अगर आपको presidential election में जो फॉर्म भरना है तो इसके लिए ये बेसिक क्वालिफिकेशंस आपके लिए जरूरी है। बट इसके अलावा भी वी आर हैविंग सम नॉमिनेशन क्राइटेरियाज। ओके, अगर आपको फॉर्म भरना है तो इसके अलावा भी आपको कई क्राइटेरियाज को फिलअप करना पड़ेगा। लेट अस सी देम। सो बेसिकली द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज द प्रपोजर्स and 50 electors as the seconders. सो बेसिकली आप जब नॉमिनेशन फॉर्म भरते हो एट दैट टाइम आपके पास एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स होने चाहिए। यानी कि मैंने जो इलेक्टोरल कॉलेज की बात की थी उनमें से 50 लोग आपको वोट कर सके, उतनी कैपेसिटी को तो आपके पास होनी ही चाहिए। उसके अलावा आपको 50 अलग से लोग चाहिए जो आपको सपोर्ट करते हो। क्लियर? सो दे आर द सेकेंडर्स। ओके, सो 50 लोग जो आपको वोट कर सके वैसे लोग चाहिए, उसके अलावा 50 लोग और चाहिए जो आपको सपोर्ट करें। सो दिस इज वन थिंग। उसके अलावा every candidate has to make the security deposit of 15,000 in the Reserve Bank of India, which is liable to forfeited if less than 1/6 of the votes are secured in the presidential elections. So basically अगर आपको less than 1/6 वोट मिले हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आपकी ये पर्टिकुलर डिपॉजिट ब्लॉक हो जाएगी। Before 1997, if we talk about the security deposit as well as the proposers and the seconders that we talked about, they were very less. Okay, अगर हम 1997 के पहले की बात करें तो security deposit थी 2500। उसके अलावा ये इलेक्टर्स और जो seconders हुआ करते थे वो भी कम हुआ करते थे। So बेसिकली उनको इंक्रीज करने का एक ही तर्क हो सकता है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है या फिर जो कैंडिडेट है जिनको लोग सपोर्ट नहीं कर सकते वो कैंडिडेट यहां पे नॉमिनेशन फॉर्म ना भरे। नाउ जब एक बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है उसके बाद बिफोर एंटरिंग द ऑफिस द प्रेसिडेंट हैज टू टेक द ओथ और अफर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, एंड in that particular oath the president swears to faithfully execute the office. This is the first swear. Second, to preserve, protect and defend the constitution and the laws. And thirdly, to devote himself to the service and well-being of the people of India. So this is the oath of the office to the president, and this particular oath is administered by the Chief Justice of India. और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम एब्सेंट हो या फिर अवेलेबल ना हो यानी कि सिलेक्ट नहीं किया गया हो तो इन दैट पर्टिकुलर केस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी द वन हु विल एडमिनिस्टर दिस पर्टिकुलर ओथ। यानी कि प्रेसिडेंट को CJI या फिर सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो ओथ दिलवाएंगे।
Now let us talk about the conditions of the president's office. There are numbers of conditions available for the president's office. The constitution basically lays down some of the basic condition, okay, जिनको president's office को पालन करना होगा. Very first, he should not be a member of either house of the parliament or a house of the state legislature, okay, and he should not hold any other office of profit. ये तो एक बेसिक क्राइटेरिया था जिसको हमें फॉर्म भर के वक्त ही फिलअप करना था. So basically, if anyone is elected as the president, he has to resign from MP or MLA seat. So this is what this particular first point want to say. Secondly, he should not hold any other office of profit. Okay, so office of profit को भी hold नहीं कर सकता. Thirdly, he is entitled without any payment of rent to the use of the official residence, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति भवन. So during his tenure, वो जो राष्ट्रपति भवन यूज करते हैं उसके लिए कोई भी रेंट नहीं पे करना है या फिर कोई भी सर्विसेज के लिए उसे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है. क्लियर. थर्डली, ही इज एंटाइटल्ड टू द इमोल्यूमेंट, यानी कि सैलरी के लिए भी वो बेसिकली एंटाइटल होता है. Other than he is entitled for the allowances and the all privileges as may be determined by the पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट ने जो भी प्रिविलेजेस डिसाइड किए हैं, ही इज एंटाइटल्ड फॉर ऑल दोस प्रिविलेजेस. वन मोर थिंग, हिज emoluments and the allowances cannot be diminished during his office term. So जो भी उसका ऑफिस टर्म रहेगा उसके दौरान उसके जो पेमेंट होते हैं, उसकी सैलरी होती है, अदर अलाउंसेस होते हैं, उनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता. क्लियर. अगर हम सैलरी की ही बात कर रहे हैं तो लेट मी जस्ट टेल यू, द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 1.5 lakhs पर मंथ. ओके, and other than that, once he retires from the presidential office, after that 50% of the salary per month is given as the pension. So this is what the salary and the pension of the president of India. Other than that, the president is entitled to numbers of privileges as well as the immunities. If I talk about all these things, during his office term, he is basically immune for any kind of criminal processing, even in respect of the personal acts. अगर उसने पर्सनल लेवल पे भी कुछ भी किया होगा प्रीवियसली तो उस पे भी कोई भी क्रिमिनल प्रोसेसिंग या फिर प्रोसीडिंग नहीं हो सकती. एंड ही कैन नॉट इवन बी अरेस्टेड एंड द इम्प्रिजन बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, ही हैज द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द इंडिया. दैट्स वाई इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अरेस्ट हिम एंड इम्प्रिजन हिम. अगर उनको करना ही है तो इन दैट केस he has to go through the impeachment process जो पार्लियामेंट में होगी. सबसे पहले पार्लियामेंट को उसका जो पोजीशन है उसको उस पे से उनको रिमूव करना होगा, उसके बाद वो सभी प्रोसेसेस हो सकती है. क्लियर. सो दिस इज व्हाट कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज. क्लियर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस. नाउ द प्रेसिडेंट होल्ड the office for the term of 5 years from the date on which he enters the office. Okay, so जो ऑफिस वक्त लेते हैं और उनके बाद जो ऑफिस में एंट्री होती है उससे बाद से 5 ईयर का टर्म गिना जाता है. बट इट इज पॉसिबल कि भाई टर्म 5 ईयर से कम हो सकता है. ओके, because he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the vice president. Okay, now यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन रखना हो तो वो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा और वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना हो तो वो देता है प्रेसिडेंट को. Further, he can also be removed from the office before the completion of the term by the process of impeachment, जैसे कि मैंने बात की थी in the previous slide. Clear. Now the president can hold the office beyond his office term of 5 years. It is possible because it is necessary कि presidents की ऑफिस में कोई ना कोई president होना ही होना चाहिए. This is compulsory. यानी कि अगर कोई by any means अगर सक्सेसर प्रेसिडेंट
को चार्ज लेने में डिले होता है, इन दैट केस ही कैन होल्ड द ऑफिस मोर देन 5 years। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब तक री इलेक्शन होते हैं तब तक उनको ऑफिस को होल्ड करके रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई एक प्रेसिडेंट एक बार इलेक्शन जीत जाए और प्रेसिडेंट बन जाए, तो उसके अलावा भी अगर वो नेक्स्ट टर्म के लिए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होना चाहे तो वो नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कहीं पे भी स्पेसिफाई की नहीं गई है कि कोई एक पर्सन प्रेसिडेंट कितने टाइम तक रह सकता है। सो लिटरली देयर इज नो लिमिटेशन, बट नॉर्मली इंडिया एज अ यूनियन में एक परंपरा रही है कि कोई भी प्रेसिडेंट मोर देन 2 times एज अ प्रेसिडेंट वर्क नहीं करेगा। सो नॉर्मली जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं उसमें लोग 2 बार नॉमिनेशन मैक्सिमम भरते हैं, और लास्ट 20 years के सिनेरियो को देखा जाए तो सिर्फ एक प्रेसिडेंट एक टर्म के लिए ही प्रेसिडेंट बनता है और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन नहीं भरता। सो दिस इज द नॉर्मल सिनेरियो, बट देयर इज नो लिमिटेशंस ऑन द पार्टिसिपेटिंग ऑफ द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। उसके अलावा हम जो 5 साल के टर्म की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली 5 साल के टर्म को मेंटेन करने के लिए जब भी प्रीवियस प्रेसिडेंट के 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, उससे पहले ही नॉर्मली पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाते हैं। नो मैटर व्हाट कंडीशंस आर देयर, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वो 5 साल के पहले ही खत्म हो जाते हैं। सो जैसे ही 5 साल खत्म हो प्रीवियस प्रेसिडेंट के, सक्सेसर प्रेसिडेंट उसके अगले ही दिन प्रेसिडेंट की ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द वेरी कॉमन थिंग। Now let us talk about this particular procedure, the impeachment procedure। वो क्या होती है और उसे कैसे किया जाता है। So basically the impeachment, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महाभियोग, और इसका एक सामान्य अर्थ होता है दोषारोपण। अगर हम देखते हैं कि भाई प्रेसिडेंट इज नॉट डूइंग वेल और से ही इज वायलेटिंग द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी कैन रिमूव द प्रेसिडेंट by the impeachment process। Clear? Now the impeachment charges can be initiated either in the Lok Sabha or in the Rajya Sabha। so कोई भी पार्लियामेंट्री हाउस में उनको इनिशिएट किया जा सकता है। Clear? Now these charges should be signed by at least 1/4 members of the parliament। Clear? So this is the limitation। Now these members of parliaments basically has to frame the charges कि भाई उन पे कौन कौन से चार्जेस लगेंगे उनको फ्रेम करना पड़ेगा, and a 14 days notice should be given to the president। Clear? Now after the impeachment resolution is passed by the majority of the 2/3 of the total memberships of that particular house, it is sent to the other house which should investigate the charges। अगर लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल कि भाई राज्यसभा में ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुई है। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनमें से 1/4 ऑफ द मेंबर्स में ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट की है, उन लोगों ने ये फ्रेमिंग की है, उसके बाद 14 डेज का नोटिस पीरियड दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी राज्यसभा की होती है वो मेजोरिटी में ये रिजोल्यूशन पास होना ही होना चाहिए। अगर 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ये जो चार्जेस लगाए गए होते हैं उनको नहीं मिलती, इन दैट केस ये जो थिंग है, ये जो रिजोल्यूशन है वो राज्यसभा से ही निकल जाएगा। क्लियर? बट अगर ये जो रिजोल्यूशन है राज्यसभा में पास हो जाता है तो उसको भेजना पड़ता है हमें लोकसभा में, यानी कि द सेकंड हाउस। सेम वे अगर यहाँ पे जो प्रोसेस है वो लोकसभा में स्टार्ट हुई है तो सेम प्रोसेस होगी, लेकिन यहाँ पे लोकसभा में 2/3 ऑफ द मेजोरिटी मिलनी चाहिए और उसके बाद ये सेम चीज हमें राज्यसभा में भेजनी पड़ेगी। क्लियर? सो दिस इज व्हाट हैपेंस टिल दिस पर्टिकुलर थिंग। अब जैसे ही हमने बोला कि भाई लेट मी जस्ट टेक द एग्जांपल कि भाई राज्यसभा में ये रिजोल्यूशन पास हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वो रिजोल्यूशन जाएगा हमारे लोकसभा में। ओके, अगर लोकसभा में पास हुआ है तो ये वो रिजोल्यूशन जाएगा यहाँ पे राज्यसभा में। क्लियर? नाउ वो लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर यानी कि सेकंड हाउस के मेंबर्स क्या करेंगे, उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। दे विल इन्वेस्टिगेट द चार्जेस वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, ओके, वेदर दे आर करेक्ट और नॉट।
if they find them proper and correct, then they also need at least 2/3 of the majority in that particular house. So राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, यानी कि फर्स्ट हाउस ने जिसने पर्टिकुलर चार्जेस को फ्रेम किया है, उसमें भी हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। जो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें भी हमें 2/3 ऑफ द मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए। सो बेसिकली 2/3 ऑफ द मेजोरिटी किसके लिए, दैट कि भाई ये जो पर्टिकुलर हाउस है, दैट पर्टिकुलर हाउस ऑल्सो सस्टेन्स द चार्जेस एंड इट बेसिकली पासिस द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन। सो उसके लिए हमें 2/3 ऑफ द मेजोरिटी चाहिए। Then the president stands to remove from the office on the date on which the resolution is passed. Okay, so जिस दिन resolution यहाँ पे पास होगा उसी दिन प्रेसिडेंट को ऑफिस को लीव करना पड़ेगा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफिशियली वहां से रिमूव होगा। नाउ यू कैन सी वन थिंग कि भाई हमें इलेक्शन के लिए तो एमएलएस की जरूरत है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट लेवल पे है उनकी जरूरत है, लेकिन अगर हमें प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो हमें स्टेट लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि किन किन सिनारियोज में प्रेसिडेंट की ऑफिस खाली हो सकती है, कब कब उनमें वैकेंसीज हो सकती है। अ वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट office can occur in any of these particular scenarios. There are total 5 scenarios available जहां पे ये वैकेंसी हो सकती है। So let us see all these scenarios. Very first scenario is on the expiry of his tenure of 5 years. Okay, जब प्रेसिडेंशियल ऑफिस के 5 साल खत्म होते हैं तब एक वैकेंसी होती है। But when the vacancy is due to this particular thing, the करंट प्रेसिडेंट इलेक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द एंड ऑफ द टर्म। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि प्रेसिडेंट का जो 5 साल का टर्म है उसके खत्म होने से पहले ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर दिया जाता है। ओके, यानी कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए इलेक्शन हो जाता है, यानी कि जैसे ही पुराने प्रेसिडेंट के 5 साल कंप्लीट होते हैं, ऑन द नेक्स्ट डे नया प्रेसिडेंट वहां पे प्रेसिडेंट ऑफिस को ज्वाइन कर लेता है। सो दिस इज व्हाट नॉर्मली हैपन्स ऑन द वेरी फर्स्ट केस। नाउ इन केस ऑफ द डिले in conducting the elections of the new president by any of the reasons, the outgoing president continues to hold the office no matter it is more than 5 years, it doesn't matter, but until the next president takes the charges he has to hold the ऑफिस। इट इज अ कंपल्सरी थिंग, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि ये ईयर्स होते हैं वो एक्सटेंड भी हो जाते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट कीप द प्रेसिडेंट ऑफिस वैकेंट। ओके, सो दिस इज द मेजर रीजन। नाउ सेकेंड थिंग, देयर इज अ सेकेंड चांस कि भाई प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है। ओके, सो ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट देयर इज अ वैकेंसी। उस टाइम पे तो ये चीज भी नहीं हुई होती है कि भाई हम इलेक्शन कर सकते हैं या फिर कुछ अलग कर सके। सो दिस इज द सेकंड सिनेरियो कि भाई रेजिग्नेशन अगर दे देता है तो क्या हो सकता है। द थर्ड सिनेरियो इज ऑन द रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट, यानी कि पार्लियामेंट जब इम्पीचमेंट प्रोसेस से प्रेसिडेंट को रिमूव करती है। एंड द फोर्थ सिनेरियो इज बाय द डेथ। सो दीज आर द 3 सिनेरियोज व्हेन all of a sudden the president office becomes vacant. Then after, what will happen? The election to fill the vacancy should be completed within the 6 months. Okay, so this must be happen. Now ये 6 months कहाँ से गिने जाएंगे? From the date of the occurrence of that particular vacancy. अगर रेजिग्नेशन हो या फिर रिमूवल हो या फिर डेथ हो, जिस पर्टिकुलर रीजन से डेथ हुआ, जिस पर्टिकुलर रीजन से ये वैकेंसी जनरेट हुई होती है, उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। दिस इज कंपल्सरी एंड द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन्स इन द ऑफिस फुल द फुल टर्म, यानी कि 5 years कंप्लीटली जो नया प्रेसिडेंट है वो रहेगा। क्लियर? सो इट इज नॉट लाइक कि भाई जो प्रीवियस 10 है उनको ही कंटिन्यू करेगा, ऐसा नहीं है। ओवर हियर व्हाट विल हैपन, कंप्लीटली फॉर द 5 years जो नया प्रेसिडेंट आया है वो रहेगा। ओके, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि भाई लेट मी से कि एक प्रेसिडेंट है,
उन्होंने 3 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट ऑफिस को होल्ड किया है, बट आफ्टर 3 इयर्स ही थिंक्स कि अब हमें रेजिग्नेशन देने देना चाहिए, तो बचे हैं 2 इयर्स। अब उसमें क्या होगा कि ये जो रेजिग्नेशन जैसे प्रेसिडेंट देता है तो उसके नेक्स्ट डे से ही इलेक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है और विदिन 6 मंथ्स, ओके, विदिन 6 मंथ्स नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है। अब नए प्रेसिडेंट को ये 2 साल को संभालना नहीं है, नया प्रेसिडेंट अपना 5 इयर्स का टेन्यूर नए तरीके से स्टार्ट करेगा। क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। नाउ अदर देन दैट, अब हमें दिखना है इंटरमीडिएट पीरियड, बिकॉज जब रेजिग्नेशन दिया उसके बाद जो इलेक्शन होंगे और नया प्रेसिडेंट सिलेक्ट होगा, उसके बीच का जो टाइमिंग है, द टाइमिंग अप टू 6 मंथ्स, नॉर्मली 6 महीने नहीं होता, लेकिन जो टाइमिंग अप टू 6 मंथ का होता है उसमें तो प्रेसिडेंट ऑफिस खाली ही रहेगी। So what will happen in that particular maximum 6 months? Now in that 6 months, the vice president will act as the president until the new president is elected. Clear? So उस टाइम में भी प्रेसिडेंट की ऑफिस खाली नहीं रहेगी, उस टाइम पे भी वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट, he will act as a president until the new president is elected. Now what happens if the vice president seat is also vacant? In that case, we are having the CJI, okay, Chief Justice of India. So वो particular person will act as the President of India. अगर हमारे पास CGI भी नहीं रहा तो in that particular case what will happen? The senior most judge, okay, the senior most judge ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एटलीस्ट वो तो रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में नंबर्स ऑफ जजेस होते हैं, उसमें जो सबसे सीनियर रहेगा ही विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। सो दिस इज व्हाट द सीक्वेंस इज। अगर हमारे पास प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट बेसिकली वर्क करेगा एज अ प्रेसिडेंट। उसके अलावा कोई भी तरीके से अगर प्रेसिडेंट नहीं रहे, प्रेसिडेंट की ऑफिस में वैकेंसी है, इन दैट केस वीपी द वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। अगर वीपी भी नहीं है, इन दैट केस सीजेआई दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। अगर सीजेआई भी नहीं सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि सीजेआई की भी सीट वैकेंट है, उस पर्टिकुलर रीजन में जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनमें से फर्स्ट जज को यहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जाता है और वो टिल दी नेक्स्ट इलेक्शन या फिर जब तक हमारे प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट होते हैं तब तक प्रेसिडेंट ऑफिस को होल्ड करेंगे। So as of now we have studied the basics of the president. Okay, we have just learned about what is the president, what is the power of president, how the president is selected, what happens when there is a vacancy in the president office. Okay, so this is the end of this particular lecture. From the next lecture we will study the various power allotted to the president. Till then, keep studying. Have a good day.